Good morning, everyone, and welcome back to another episode of Divine Unscripted. I am Arna. And I'm Gursimar, and today we are going to dive into the future of human wellness. Our guest is someone who sits at a fascinating intersection between modern medicine and consciousness-based transformation. Dr. Vishal is a medical doctor, a certified pranic psychotherapist, and a senior pranic healing trainer with over 16 years of experience. He is as the founder of GMCKS Pranic Healing and Hieratic Yoga Center in Ahmedabad. He has dedicated his life in helping various students, entrepreneurs, and professionals master their emotional wellness, stress resilience, and mental stability. What makes Dr. Vishal's approach so unique is how he combines traditional medicine with practical human energy dynamics. Other than the medicinal part, he is also involved in various types of community service, which shows that actual healing is not only about the individual. So, Dr. Vishal, we are pleased to have you here and welcome to the show. Thank you so much. So, good morning, sir. Good morning. How are you feeling, sir? Fantastic. We are also so pleased to have you here. So, to begin with, we both study biology and we are currently in grade 12th, and we are quite familiar with the terms allopathy, homeopathy, and Ayurvedic healing. But the term pranic healing is a bit new for us. So, for the viewers and also for us, could you please elaborate and explain what exactly pranic healing is and how is it different from the scientific healing that we use? Yeah, the pranic healing is founded by Grandmaster Chokoksui. He extensively researched the science of energy. Why we use the word science? Science इसलिए यूज़ करते हैं कि वो हमारा पार्ट है, हमारा लाइफ है, साइंटिफिक है, मतलब वैलिडेशन कर सकते हैं हम उसको. सो टीचर का काम था कि ही हैज़ टू गिव समथिंग दैट पीपल कैन यूज़ थ्रू देयर हैंड टू हील देयर पेन, सफरिंग, sorrow, and to see the heaven within earth. The heaven means the within us. There is no heaven is available. But if you feel the peace, joy, happiness inside, painless or no suffering, or might be suffering but you are coming out from the daily life, so it will not hurt you. So extensive research उन्होंने चेक किया कि प्राणिक हीलिंग कैसे काम करता है, how it will work. साइंस बताता है कि बॉडी हील इटसेल्फ. एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स यू नोज दैट वेरी वेल कि बॉडी को हम प्रोसेस देते हैं, चाहे एलोपैथी को, होम्योपैथी को, आयुर्वेदा हो, एनीथिंग. सो बॉडी का एबिलिटी है टू हील, मगर दो एस्पेक्ट्स हमें पता नहीं है बॉडी का. दैट इज कॉल्ड द फिजिकल विजिबल बॉडी एंड अनदर इज कॉल्ड इनविजिबल फिजिकल बॉडी. द इनविजिबल फिजिकल बॉडी को साइंस ने ढूंढा है. अब डॉक्टर किलियन मैंडोविच है जिन्होंने रशियन साइंटिस्ट किलियन फोटोग्राफी विकसित किया. सो अपना जिसको हम आध्यात्मिकता में ऑरा बोलते हैं, ही टेकन द फोटोग्राफ्स. और रिसर्च के साथ पता भी चला कि व्हेन द ह्यूमन बॉडी हैव सम डिसीज़, तो वो उसके इंटरप्रिटेशन कलर के थ्रू पता चलता है. एंड वो बॉडी जब हील हो जाता है तो वापस वो रिस्टोर भी हो जाता है. इट्स लाइक व्हेन वी टेक द ब्रोकन बोन एक्सरे, तो दिखता है कि बोन टूटा हुआ है. जब उसको ठीक हो जाता है तो विल सी कि इट बिकम नॉर्मल. सिमिलरली जब अपना कोई रिपोर्ट निकलता है, सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बॉडी हील इटसेल्फ. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स. फर्स्ट नंबर का. सेकंड प्रिंसिपल्स मास्टर दीव्स का से दैट कि यू रिक्वायर लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स. द लाइफ फोर्स आर टू टाइप. द फिजिकल बॉडी रिक्वायर्ड सपोर्ट, न्यूट्रिशंस, exercise, breathe, water, whatever, right, to nourish our physical cell, nourish our body. मगर जब अपना एनर्जी बॉडी जो है, उस एनर्जी बॉडी को भी नरिश करने का ज़रूरत है. सो एनर्जी बॉडी मतलब मेरा जो फिजिकल बॉडी का एनर्जी बॉडी है, उसका दो पार्ट है. मतलब उसको दो तरीके से प्राणा मिलता है, उसको लाइफ एनर्जी मिलता है. सो विल लेट अस सेपरेट टू पार्ट. एक जो हमारा बॉडी बना हुआ है, जो साइंस इज ऑल्सो बिलीव 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स. सो वो 5 एलिमेंट्स मेरे बॉडी, एनर्जी बॉडी को प्रिपरेशन करता है. इवन द सराउंडिंग ऑल्सो रिक्वायर द 5 तत्व. सेकंड पार्ट इज माई सोल. सोल ऑल्सो रिक्वायर द स्पेशल एनर्जी, उसको हम डिवाइन एनर्जी बोलते हैं. इवन द नेम ऑफ द स्कूल इज डिवाइन. दैट्स कॉल्ड द spirituality integrated into our life.
This is how the Master Cho built this pranic healing, and especially given two technique to heal with your hand only. You doesn't require any instruments. आपको कुछ भी चाहिए नहीं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है कि आप उनकी और एनर्जी सिस्टम को, एनर्जी बॉडीज़ को वर्कआउट करते हैं. Okay, Okay, sir. wonderful. So, while we're on the topic of spirituality, in our country, India is still relatively developing when it comes to spirituality or mental health awareness. And talking about traditional schooling and academics, right? These aspects, they become overlooked. Like, we are taught a lot about traditional science and medicine, but we are not taught about mental health or spirituality. So, according to you, sir, how important are these two aspects in a student's life? And if you had to suggest us some ways to incorporate them, what would those be? Okay, very good question. Really हमें ये समझना चाहिए, we need to understand your question कि body, अभी हमने बात किया दो part, the visible physical body and the invisible visible body. अब चलो हम थोड़ा सा डीप ड्राइव करते हैं इसके अंदर. सो फिजिकल बॉडी के बात करते हैं तो वी हैव द फिजिकल लुक, द स्किन्स एंड एवरीथिंग, बट वी हैव द इंटरनल ऑर्गन. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी है, और इंटरनल ऑर्गन्स को एक कंट्रोल करता है, दैट इज द ब्रेन. हाउ द ब्रेन विल वर्क, देयर इज सो मेनी मैकेनिज्म. मगर मेरा एक थॉट आएगा, मेरी सोच आएगी कि मुझे ये करना है. इफ़ आई वांट टू हैव वाटर, आई हैव टू पिक अप. So ये कमांड कैसे गया, we don't know, but science is no through the mechanism of the brain it will work out. ऐसे ही हमारे सिस्टम में जो एनर्जी सिस्टम है वो भी इतना ही बड़ा काम करती है, उससे भी ज़्यादा काम करती है. Let me take the one example. Let us take the example of the car, right? Car have the body, and car have the mechanism, and car have the driver, right? So the body अकेला होगा तो कार कैसे जाएगा आगे, कहीं नहीं होगा. अगर मैकेनिज्म नहीं होगा तभी भी नहीं जाएगा, और मैकेनिज्म भी है, कार भी है, और ड्राइवर नहीं है तो भी आगे नहीं जाएगा. सो नाउ वी विल सेपरेट द बॉडी इज लाइक अवर फिजिकल बॉडी. द मैकेनिज्म जो उसको गर्मी ठंडी लगता है, हीट हो जाता है कभी कभी, वो एसी भी ऑन करेंगे तो गिव द कूलिंग. सो दैट इज कॉल्ड द इमोशंस एंड द थॉट. लेट अस इंटरप्रेट इट लाइक दैट ओनली, कि वो हमारा इमोशंस और थॉट है जो कभी हमें कूलिंग देता है, कभी हमें हीट भी देता है. इस लाइक हमारे एक्सपीरियंस जब लाइफ में होते हैं तब वो अनुभव अलग तरीके से करवाता है, मगर जब वो हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है तो हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे कि आप स्कूल में हैं, आप इज़ गोइंग वेरी वेल, मगर जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा क्या होगा, टेंशन स्ट्रेस शुरू हो जाएगा. सो वो कैसे आप इन्वेस्टिगेट करोगे स्ट्रेस का, दैट इज़ नो. वेर इज हाउ यू इन्वेस्टिगेट टेंशन, नहीं, वो तो खुद ही फील करेगा. तो वो प्लेजेंट अनप्लेजेंट एटमोसफियर बनाएगा. और वो अगर मैकेनिज्म में जाते हैं, अगर मेडिकल की मैकेनिज्म में जाते हैं तो देर आर सर्टन हार्मोन्स, केमिकल्स जो एक्टिवेट हो जाएंगे. इज लाइक अ कॉर्टिजोल विच विल अफेक्ट आवर स्ट्रेस साइकिल. अगर वो सही चलेगा तो इट्स अ गुड, मगर वो एक्टिवेट किसने किया, द एग्ज़ाम स्पेल. आप जब स्टडी कर रहे थे तब ये हो रहा था, नहीं. बायोलॉजी पढ़ रहे थे तब हो रहा था, नहीं. बट व्हेन EXAM इट ट्रिगर द सिस्टम. वो जो थॉट है दैट इज कॉल्ड द इनविजिबल, इज कम्प्लीटली इनविजिबल, मगर वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारे पे, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव. अब बात आता है कि होलिस्टिक, राइट, क्यों इंटीग्रेट करना ज़रूरी है हमें आज की लाइफ में. होली वर्ड्स केम फ्रॉम द हॉलोज, द ग्रीक वर्ड, मतलब कंप्लीट, होल. स्टिक मीन्स द उसका करने का तरीका. द होलिस्टिक इसका मतलब है कि हमें कंप्लीट काम करना पड़ेगा, हमें होल बन के काम करना पड़ेगा. सो साइंस, मेडिकल साइंस इज़ एक्सेलेंट, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है हमें. वी कैन नॉट इग्नोर, वी कैन नॉट डिनाई दैट, क्योंकि वो डायग्नोसिस करके देता है. मगर साथ में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं द सिस्टम जो हमारे इनविजिबल बॉडी पे काम करेगा, एनर्जी बॉडी पे काम करेगा, दैट इज़ कॉल्ड द होलिस्टिक अप्रोच, जो मेरे फिजियोलॉजिकल को, मेरे साइकोलॉजिकल को, मेरे मेंटल हेल्थ वेलनेस को और मेरी स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके जाएगा. अब नाउ द थर्ड पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड, वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल बॉडी
Then we discuss about the emotions and the thought, that is mental and emotional wellness. Now the spirituality. What is spirituality? Believing in the power. Believing the power, believing the God. This is called the superficial understanding. But true spirituality is within you. How? So हमने जब एक example लिया कार का, so that is called the driver. So वो कौन drive कर रहा है? Who is driving the car? Driver. Driver. Who is the driver? Human. Okay. The question mark. Yeah. Now I'm asking you one question. Move your hand. Who's moving your hand? Our brain. Who's moving your brain? Our thought. Who's moving your thought? That's the question. Like it's called your soul, right? So the spirituality is belong to our soul. The soul, what is the soul? Soul means my character, my ethics, my success. मगर कैसे आना चाहिए वो? It should be from my inside. मेरे को inner peace रहना चाहिए. It should be feel compassionate. It should be generous, not greedy. Right? That is called spirituality. So every religions, we believe in the gods and gurus and everywhere. But what they will direct us, develop yourself. Develop yourself. What is meaning of yourself? वो कौन है? वो सेल्फ कौन है? जब तक आप उसको डिस्कवर नहीं करोगे, तब तक आप उस पर काम ही नहीं करोगे. That is called difference between the physical, mental wellness and spirituality. That's a wonderful perspective. It's the first time we've heard something that's not just about God. Sir, so what can the students do in their life to incorporate this spirituality? Right. It's a very needed of this era. क्योंकि अभी जो millennium चल रहा है, it's very innovative, very technological. वहाँ पर mental work बहुत ज़्यादा है. और साथ में इमोशनल्स भी होते ही हैं हम. सो वी लर्न, वी गॉट द गुड मार्क्स, परसेंटेज, एवरीथिंग, बट डिस्पाइट दैट सक्सेस वी आर नॉट फीलिंग दैट सक्सेस. क्यों? क्योंकि इट गिव मी द एग्जॉशन, स्ट्रेस, टेंशन. मेरा लाइफ में डिसीज अपीयरेंस शुरू होता है. सो when I come out from this whole situation, जब मैं इसमें से बाहर निकलता हूँ, then I feel the inner peace, inner wellness, mental wellness. The mental words is very difficult, क्योंकि जब उसको सुनते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये पागलों की जैसे बात है. It's not for that. Mental wellness is very important in this era. क्योंकि जब आपके सोच, mental means the thinking power is very powerful. आप calculated बहुत powerful कर सकते हो. You can achieve whatever you want. मगर जब वो एग्जॉशन में चेंज हो जाता है, तो वो हीट जनरेट करता है लाइफ में. एंड डिस्पाइट वॉट एवरीथिंग, इफ यू हैव द गुड मनी, एवरीथिंग, मगर पीसफुल स्लीप नहीं आता है, एक पीसफुल सोच नहीं आता है. सो दैट रिक्वायर्ड मेंटल वेलनेस. फॉर मेंटल वेलनेस वेरी सिंपल प्रैक्टिस आर देयर, वेरी सिंपल प्रैक्टिस आर देयर. One of the beautiful technique teacher given is called your breathing technique. But you have to do properly. जैसे हम breathe करते हैं, so breathe have rhythm. जैसे अपना environmental rhythm से चलता है, एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु आता है, कभी चेंज नहीं होता है वो. That is called rhythm. अगर मैं बॉडी को रिदम में रखता हूँ, तो मेरा वेलनेस रहेगा. So if you do your breathing properly, like जब हम ब्रीथ करते हैं, आवर एब्डोमेन शुड बी एक्सपांड. आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को, द एब्डोमेन विल कम आउट. अगर वो चेंज हो जाता है जब बड़े होते हैं, तो एब्डोमेन गोज इनसाइड व्हेन वी ब्रीथ. अगर उसमें दो तरीका, मतलब दो साइंटिफिकल भी अप्रूवल है. द डायाफ्राम जो अपना एब्डोमेन और थोरेक्स को अलग करता है, इट गोज डाउन, सो वी हैव द गुड कैपेसिटी ऑफ द लंग्स. मगर उससे भी एक बड़ा पहलू है. आपका जो एनर्जी बॉडी होता है, it absorbs tremendous amount of prana, मगर उसमें एक छोटा सा एड ऑन करना पड़ता है. You have to be hold for a second. So it inhale lot of prana. When you exhale, it drop the hold. It will expel lot of prana. It will recharge you faster.
This is a very simple technique. There are many techniques are there. The best technique I say for the children is called gratitude. Right? So कभी कभी क्या होता है कि जब सब्जेक्ट होता है कोई, तो सब्जेक्ट पे सारे तरीके से प्रेशर आता है. सब बोलते हैं तेरे को ये नहीं आता है, तेरे को समझ में नहीं आता है. द थॉट इज स्टार्टेड नाउ. वो बोलेगा मेरे को ये नहीं आएगा. इट्स नॉट बैड, गलत नहीं है, मगर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अचीव दैट वन. मगर उसके साथ उसका ग्रैटिट्यूड भी रहना चाहिए कि सब्जेक्ट बायोलॉजी तो सभी के पास है, मगर मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इट इज़ नॉट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ. सिमिलरली यू हैव टू ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ. पहला, सबसे पहला, यू हु यू आर, यू हैव टू फाइंड आउट. वो एक ऐसा क्रिएशन है गॉड का उनकी इमेज में जो किसी के पास नहीं है. So that is the called gratitude. The simplest part of the gratitude and the respect will change your entire system. क्योंकि साइंस ने भी ढूंढा है. There are many various practices that happen. इसका भी अगर आप सर्च करोगे तो गूगल में मिल जाएगा आपको कि gratitude practice change your perception, not the perception, your brain capacity. The third part, meditation. Frequency, we can say frequency, that is called hertz, right? So साइंस ने एक प्रैक्टिस किया हुआ है. आई आस्क टू सर्च ऑन दैट. अगर आप 8 वीक्स मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन रिक्वायर्ड 3 पार्ट. मेडिटेशन का विल डिस्कस लेटर ऑन क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मगर ये 3 चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा. मेडिटेशन मीन्स अवेयरनेस, स्टिलनेस एंड एक्सपांशन कॉन्शियसनेस. अगर अभी हम बैठे हैं यहाँ पर तो हम अवेयर भी हैं, हम कनेक्टेड भी हैं और कॉन्शियस भी है. सो मेडिटेशन में यही होना चाहिए, तब जाके हम एक साइलेंट पे जा पाएंगे, उससे पहले नहीं जा पाएंगे. अगर ये कर सकते हैं हम, तो मेरा ब्रेन और आपका ब्रेन का जो ग्रे मैटर है ना, वो 8 वीक्स में चेंज होना शुरू हो जाता है. अगर वो ग्रे मैटर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो मतलब आपका ब्रेन का कैपेसिटी और पावरफुल हो गया. सो नॉर्मल ह्यूमन कैन नॉट डू दैट वन. नो, एवरी ह्यूमन कैन डू दैट. मगर वो ग्रे मैटर बढ़ जाता है तो काम नहीं कर पाता है. सो दिस ऑल आर कॉल्ड साइंटिफिक वैलिडेशन. सो स्पिरिचुअलिटी इज कॉल्ड साइंटिफिक वैलिडेशन, नॉट ब्लाइंड बिलीव्स. Okay, that's a very interesting perspective. Thank you, sir. Now, talking about your personal life, you are an MBBS. MBBS, as we know, as biology students, हमने भी बहुत सुना है MBBS बहुत successful, बहुत fulfilling career line है. And at some point, you were also the CEO and COO of a very prestigious hospital in Ahmedabad. So, after that level of success, ऐसा कौन सा factor था that motivated you to pursue spirituality? It's my heart-touching question. Thank you. No doubt at all कि medical science के आगे हम मतलब we cannot say कि वो नहीं काम कर रहा है. It's amazing, amazing, amazing. क्योंकि अगर वो validation नहीं करेंगे तो हम उस पर काम ही नहीं करेंगे. मगर जब आप कोई एक ऐसा डिसीज़ पे कनेक्टेड हो जाते हैं जहाँ पर अभी आगे साइंस नहीं बढ़ा हुआ है, is there some question mark? So it require research कि उसके बाद काम करना पड़ेगा. That is one condition happened with me, avascular necrosis. My whole family is in the medical. मेरे पापा मम्मी दोनों डॉक्टर्स थे. So वो जानता हूँ मैं मेडिकल साइंस कितना काम करता है, क्योंकि मैं छोटा था तब से मेरे पापा का जो लोग रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड देते थे ना, आई सीन फ्रॉम माई हार्ट. इट्स नॉट अबाउट मनी, बट वो जब ठीक होते जाते थे तो वो इतना दिल से उनसे बात करते थे और उनको रिमेंबर में रखते थे. सो वो पहले से था, है और आज भी है. सो द मेडिकल साइंस इज़ अ नो डाउट कि वहाँ पर हमने सर्विस किया फिजिकल बॉडी के लिए. जो उन्होंने जो अंदर से खुशी महसूस किया, वो खुशी था उनका, क्योंकि वो समझते कि एक हमें नाम देते डॉक्टर को कनेक्टेड विद द गॉड, कि आप गॉड एक भगवान का आप दर्जा हो. मगर जब वो दर्जा समझ में नहीं आता है तब हम अपने इथिक्स से टूट जाते हैं कभी कभी. वो इथिक्स को रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. सो व्हेन वी डू द प्रैक्टिस, और जब खुद हम परेशान होते हैं, जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस मेरे को हुआ था, सो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो मेरे बोन्स को ग्रो करेगा वो. सो व्हेन आई फॉल इनटू द प्राणिक हीलिंग, आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ कि पेन बिना मेडिसिन से जा सकता है. सो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, हाउ इट गॉन. सो देन आई हैव टू डीप ड्राइव इनसाइड.
So जब मैं समझा प्राणिक हीलिंग को तो पता चला कि there are two part of the doctor. The doctor has to heal the physical body, but साथ में उसके ड्राइवर को भी हेल्प करना चाहिए. So that dignity should come in my practice. That joy should come my practice. The inner growth should come in my practice. ये that's why I integrated the pranic healing because it's a very scientific. It's very scientific. It's validated. Agreed. That's why. Okay, sir. Sir, so after reading about you, we got to learn that you have been practicing and training pranic healing for about a decade or more than a decade. So आपको क्या लगता है कि अगर हम pranic healing को जो रेगुलर साइंटिफिक हीलिंग है उसके साथ इनकॉर्पोरेट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा? Absolutely. Absolutely. हमारा रिसर्च विंग भी है. डॉक्टर ग्लेन मेंडोजा इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट इन यूएसए. प्राणिक हीलिंग 120 कंट्री में है. वी आर वर्किंग विद वेरी ऑथेंटिकली एंड इथिकली और जो भी गवर्नमेंट्स के नियम से उसके साथ हम वर्कआउट करते हैं. आई ऑल्सो द पार्ट ऑफ द IVF रिसर्च. साइंटिफिकली हमने उसको इंटीग्रेट किया और इट गिवन्स अ वंडरफुल रिजल्ट. इट इंक्रीज द कैपेसिटी. जो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, 2, 3, 4 साइकिल भी नहीं हुआ था सक्सेसफुल, वो विद इन 1-2 साइकिल में सक्सेसफुल हो गया. सो द प्राणिक हीलिंग इज कॉल्ड एनर्जी साइंस व्हेन इट क्लब विद द बॉडी. क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बात किया था कि फिजिकल बॉडी हैव एनर्जी बॉडी. अगर मैं दोनों पार्ट पे काम करूंगा तो ही जाके मेरा बॉडी यूनिफॉर्म होगा. अगर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, बैलेंसिंग नहीं होगा तो वापस उसमें प्रॉब्लम आएगा. सो व्हेन वी इंटीग्रेट बोथ देम, सो फिजिकल शुड विद द साइंस, द मेडिकल इज वन ऑफ द extraordinary conditions we can apply. Not all others are there. Ayurveda, homeopathic are also there. But the energy science, the pranic healing will heal the not only the body, it heal my emotions, it heal my mental thoughts, and it awaken my soul. So when we awaken our soul quality, that is a called easy process to drive smoothly my car in the road. Because everyone will come when we drive. They will come between you. They will cross the road. It is unexpected thing will happen. But when we are peaceful, then it's perfect. So obviously we have to integrate both the science together to give the good things to the human. That is called humanity. So like the pranic healing opens the highway for the car so that it moves smoothly and reaches the destination. Yes. Okay. True speak. So, sir, so your initiative for Food for the Hungry that we read about, it has very deep connections to like selfless giving and helping people. So, what do you think that you and your team members grew individually and spiritually as much as the people you have helped in that scheme? Right. What your soul need? Peace. Energy? The peace. But I can say the soul need compassion, kindness, lovingness. How you feel that kindness, lovingness and compassion in within you? If you are not giver, then Will not know it is there. you have to experience it. Yes. Without experience, you will not understand the words compassion, kindness and Yes. lovingness. Yes. Right? So the giving aspect, the Master Chokoksai created the one entity, it is called MCK Trust Fund. So our group will go anywhere and we'll offer the food with respect, with gratitude, with kindness, with joyness. So जब वो हम किसी को देते हैं, so it's like a small things, it's not about the food, money or anything. जब किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है और उसको मिलता है तो वो किसको ग्रेटिट्यूड करेगा? जो दे रहा है उसको. नहीं, साथ में उसको करेगा, यू आर राइट, बट ज़्यादा करेगा ऊपर वाले को. सो दैट ट्रस्ट बिटवीन द सोल, द बॉडी विल एस्टैब्लिश. कोई तो है जो मुझे मदद रूप हो रहा है. दैट व्हेन वी सो इन द आई ऑफ द पीपल, दैट कंपैशन विल जनरेट, द काइंडनेस विल जनरेट.
सो ये जब हम ग्रुप में जाते हैं ना तो वो देखते हैं, हम बच्चों के साथ भी जाते हैं, देखते हैं, सो गिव करते हैं, वो लेने आते हैं ना, खुशी से आते हैं और खुशी से देते हैं। ऐसा नहीं कि आप कौन हो कैसे हो, नहीं, यू हैव टू गिव इट विद ओपन हार्ट। और वो जब खुश हो जाते हैं, आई वॉन्ट टू शेयर द वन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। ऑलमोस्ट एवरी वीक एंड एवरी मंथ विल डू द फूड फॉर हंग्री। हम बनाना हर वीक को हम देते हैं, विल गिव टू एनी वन। ऐसा नहीं कि इट्स कॉल्ड फूड फॉर हंगर, जिसको भूख है, मगर विद द ब्लेसिंग्स, उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होता है। सो आई एम वॉचिंग फ्रॉम द टॉप every day, means every week. So I seen one person who's coming with the car. एक बार संडे को देखा, दूसरी बार संडे को देखा मैंने, थर्ड बार देन आई वेंट डाउनवर्ड, क्योंकि पूरे ग्रुप के साथ काम करते हैं। सो वो लेके जा रहे थे, तब मैं आई वेंट टू दैट पर्सन और मैंने बोला कि सर कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। कहता यस। सर मैं देख रहा हूँ आपको 2 वीक से कि हर वीक आप आते हो, आप ऐसे तो नहीं हो कि आपको बनाना चाहिए, मगर आप लेके चले जाते हैं। सो कैन आई आस्क व्हाई? ही से डॉक्टर, ही आस्क्ड मी, आई सेड आई एम डॉक्टर विशाल और मैं प्राणिक हीलिंग के लिए काम करता हूँ यहाँ पर, और ये हमारी काम है अपने ह्यूमंस के लिए। डॉक्टर आई वांट टू शेयर समथिंग। कि एक दिन मैं जा रहा था, देयर वाज कॉल, आई एम इन चॉज, मेरा बिजनेस के लिए कुछ सोच नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। आई एम लिटिल डेप्थ और इट्स कॉल्ड मेंटल एग्जॉशन एवरीथिंग। सो पता नहीं, एक बार मैं यहाँ से निकला और देखा कि आप सब लोग बनाना दे रहे हैं आप लोग, तो आई स्टॉप माई सेल्फ एज ए प्रसाद, मैंने उसको लिया। पर आई डोंट नो व्हाट हैपन व्हेन आई एट दैट वन एंड मैं जब अपने काम के लिए गया, मेरा काम खत्म हो गया जो पिछले कुछ महीनों से नहीं हो रहा था। सो दैट चेंज सडनली एक मेरे को स्पार्क दिया कि ये जो गिविंग जो है ना, वो कैसे काम किया। सो नाउ इज माई पार्ट कि एवरी वीक मैं यहाँ से निकलूँगा और ये मैं बनाना लेके जाता हूँ। दिस इज़ अ वेरी ट्रूली हार्ट टचिंग स्टोरी वी ऑब्जर्व। सो डोंट नो गॉड कहाँ से किस तरीके से आएगा किसी के पास, बट द बॉडी इज रिक्वायर्ड। सो द गिविंग इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट to be for the humanity. Okay, sir. That's a very interesting perspective again. So, doctor, before we wrap up, you spent most of your career writing prescriptions for the physical body. But today over here, we talked about the mind, we talked about energy, our society. So, for everybody listening, if you had to pull out your pad right now and write one universal prescription for everybody watching, what would it be? It's very difficult to say, but I say only one thing: watch your soul. Take the guidance from your soul. Everything will be restored. Prescription for the mind, the body, and humanity. It's crazy to believe that in a world obsessed with biohacks, the various apps, and the supplements, the ultimate upgrade for the human life is the stillness and the service we provide to others. Dr. Vishal, thank you so much for completely flipping our perspective on what it means to be well. And to everybody tuning in, don't just listen to the doctor's orders. Actually do the work. Go find your stillness, go help somebody out, and most of all, stay positive. This is Arna. And this is Gursimar Signing off. So stay tuned for the next episode of Divine Unscripted.